Hello students, Vishakha ma'am here with our EVS subject and new topic lesson number 5, water for every household. Our lesson number 5, water for every household. Okay, but before this I also explained lesson number 4, water safe for drinking is question and answer, because last time I explained this very fast. लास्ट टाइम ये लेसन नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने बहुत फास्टली आपको समझाए थे। तो अभी सबसे पहले मैं लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ, उसके बाद हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेसन नंबर 4, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड इस क्वेश्चन एंड आंसर। एक्सप्लेन तो हमारा हुआ है, लेसन तो हो गया हमारा। ओके, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन A. Use your brain power. Some rava has gone mixed with sago pulse or sabudana. What should we use to separate the two, the one that allows rava to pass through or the one that allows sago? And your answer: the particle size of rava is smaller than sago pulse, so we shall use the sieves that allows rava to pass through. The sago pulse will remain in the sieves and turn, the two will get separated. Our next question. Answer the following question. A. Name the substances used to make the solution called lemon sharbat. And your answer: the substances used to make the solution called lemon sharbat are lemon, sugar, salt and water. Okay. Second, what is it that water that looks clean and transparent may not be fit for drinking? Why is it that water that looks clean and transparent may not be fit for drinking? And your answer: water that looks clean and transparent may not be fit for drinking because harmful microorganisms that cannot be seen with naked eyes may be present in water. These microorganisms, if enter our body, can be harmful for our health. Third, when making a sharbat, what do we do to make sugar dissolve quickly? And your answer: while making a sharbat, we stir with a spoon so that the sugar dissolves quickly in water. Lesson number 4, does oil float on water or sink in it? And your answer: oil floats on water as oil is lighter than water. Now, complete the table. Write the information to obtain the floating sinking experiment in the table below. Repeat the experiment with other things beside those methods in the lesson. Write their names too in the proper place in the table. Things, this float, ये हमें लिखना है। थिंग्स कौन सा है देखो, गिवन इन द लेसन कौन को क्या क्या दिया है। फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स से हमने लिया प्लास्टिक रूलर, शार्पनर, रबर बैंड एंड द कंपास। एंड सिंग्स, इसमें से सिंग क्या होगा, एंड इरेजर, शार्पनर, द कंपास। और फ्लोट क्या होगा, अ प्लास्टिक रूलर और पेंसिल और रबर बैंड। ऐसे ही मैंने फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम आउटडोर, अदर थिंग्स, ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके दिया है। नेक्स्ट देखो, repeat the experiment in the lesson related to dissolving using some other substances. Make a table like the ones above and fill in your finding in it. जैसे ऊपर पहला टेबल हमारा था वैसे ही ये टेबल है। थिंग्स है, दिस डिजॉल्व इन वाटर, दिस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या क्या थिंग्स है देखो, गिवन इन लेसन: sugar, common salt, washing soda, powder alum, sand, sand dust, turmeric powder,
ऑयल, व्हीट फ्लोर। अभी डिज़ोल्व क्या है? शुगर, कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, पाउडर, एल्यूम। एंड डू नॉट डिज़ोल्व नहीं होते, ये क्या है? सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल, व्हीट and wheat flour. Do not dissolve in water. Other things, antacid tablet, antacid tablet, wax, and this dissolve in water, antacid tablet and wax. Okay. Now our next question, D, fill in the blanks. First, substances like salt and sugar dissolve after sometimes when added to water. यहाँ dissolve हमें fill in the blanks के लिए word था. Second, the mixture obtained to dissolving a substance in the water is called solution. Third, ORS is an example of useful solution. ये अभी मैंने homework को आपको दिया था. Fourth, all microorganisms are not useful. Some can causes disease if they enter our body. फोर्थ तो हमारा अभी हो गया. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल. सम कैन कॉज डिसीज इफ दे एंटर आवर बॉडी. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे नहीं होती. कुछ अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो हमें इलनेस देते हैं. थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर लाइटर दैन इट एंड थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर दैन इट. एंड लास्ट, अ सब्सटेंस कॉल्ड एल्यूम is drilled in muddy water to help clean the water. And our last question, true or false? Alum powder does not dissolve in water. False, because it dissolves. Microorganisms cannot live in water. False, because they live. Third, if muddy water remains still, a sediment is formed at its bottom. True. An eraser float in water. False. And last, tea leaves can be separated from tea by filtration. True. Okay. Now students, here I complete lesson number 4, question and answer. Now we start lesson number 5, water for every household. Water for every household means हर घर के लिए पानी. कितना इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्टली, कैन यू रिकॉल? रिकॉल मीन्स आप याद कर सकते हो क्या? आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करो, थोड़ा पीछे के लाइन में जाओ. पीछे की लाइन मतलब ऐसे रिमेंबर में, और सोच के बताओ मुझे. व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच वी नीड वाटर? व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच वी नीड वाटर? पर्पस मीन्स हेतु. हमें कौन कौन से काम के लिए पानी चाहिए या पानी लगता है. व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस फॉर विच वी नीड वाटर? हमें कौन कौन से काम के लिए पानी लगता है. सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर. अभी तो आपने दिया भी होगा, राइट? पानी हमें सब काम के लिए चाहिए. किचन वर्क, गार्डन वर्क, हाउस होल्ड, सब के लिए, फॉर ड्रिंकिंग. नाउ नेक्स्ट, कैन यू टेल? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? The picture below shows some containers used for storing water at home. जो नीचे, below means नीचे, जो नीचे जो कुछ पिक्चर दिए गए, ये क्या है? वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इनको कंटेनर नाम दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, which of these have come into use more recently? इसमें से कौन सा अभी के लाइफस्टाइल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस हैव कम इनटू यूज़ मोर रिसेंटली? अभी के लाइफस्टाइल में कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो मुझे लगता है, देखो, ये फ़िल्टर रहेगा, ये हम अभी यूज़ करते हैं. और ये पानी की टंकी, क्योंकि जब हम न्यू शिफ्ट होते हैं किसी भी बिल्डिंग में तो सबसे पहले हम ये एक्वागार्ड का पानी ही यूज़ करते हैं. और ये, राइट? नाउ योर सेकंड क्वेश्चन, what materials are used to make these different containers? अभी ये इतने सारे कंटेनर्स है, तो इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? देखो, पहला मुझे लगता है शायद किसी मेटल का है,
कॉपर रहेगा, शायद कॉपर मेटल का है। सेकंड देखो क्ले का है, ये तो प्लास्टिक का है। देन ये भी प्लास्टिक का है। फिर ये कॉपर का दिख रहा है और ये स्टील मटेरियल है। तो ये व्हाट मटेरियल्स आर यूज, ये हमें इसमें सीख लिया। थर्ड क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लीड एंड टैप ऑन द कंटेनर। व्हाट आर द एडवांटेज, लीड और टैप मीन्स देखो ये ढक्कन है, यहाँ भी ढक्कन है, देखो यहाँ लीड मीन्स ये ढक्कन। तो ऐसे कौन सा एडवांटेज है, हम पीने का पानी या कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो हम लीड रखते हैं, जो ढक्कन रखते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, बता सकते हो आप मुझे। सिंपल है, आपको तो पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ के ऊपर लीड नहीं रखेंगे, ढक्कन नहीं रखेंगे, तो उसमें जर्म्स, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े एंटर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ डेंजरस फॉर अस, दे इंजर आवर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट, We need water all the time. Simple sentence and simple meaning. हमें पानी हर टाइम लगता है. We have to store water in the houses so that we can get it when we need it. हम पानी घर में स्टोर रखते हैं और जब हमें चाहिए हम उसका यूज़ करते हैं. Earlier brass and copper pots as well as earthen pots are used to store water. Earlier means पुराने ज़माने में brass, copper या अर्थन पॉट्स मीन्स देखो ये, इसको हम अर्थन पॉट्स भी बोलते हैं, ये मिट्टी का। अर्थन पॉट्स आर यूज टू स्टोर वाटर। पुराने ज़माने में ऐसे चीज़ें, ऐसे कंटेनर्स पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दिस डिफरेंट पॉट्स वेयर नोन। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी को पूछो कि वो क्या यूज़ करते थे, आपको जवाब मिलेगा। या ऐसे ये पिक दिखाओ, फिर नानी दादी बोलेगी हाँ हम लोग यूज़ करते हैं। या अभी अगर अभी भी आप गांव में हो तो आपके गांव में अभी भी ये बर्तन किचन में दिखेंगे। पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक इन देयर हाउसेस टू स्टोर वाटर। नाउअडेज, अभी के ज़माने में पीपल क्या करते हैं, टैंक, बड़ी बड़ी टंकी बिल्डिंग के ऊपर ही पहले से ही पानी स्टोर करने के लिए पहले से ही बड़ी बड़ी टंकी की अवेलेबिलिटी पर पहले से टंकी वहाँ ये करते हैं, पीपल्स आर बिल्ड करते हैं। Nowadays, steel और प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर। Nowadays मीन्स अभी के ज़माने में जैसे पीपल पानी की टंकी, क्या सीमेंट की टंकी हो या सिंटेक्स या प्लास्टिक की टंकी पहले से ही बिल्डिंग के ऊपर बिल्ड करते हैं, उसी तरह स्टील और कौन सा स्टील और प्लास्टिक का यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए। स्टील और प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पानी जो पीने वाले हैं हम या जो पानी पीते हैं उसकी साफ सफाई कैसे करते हैं। टू एंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इफ वी कंज्यूम कंटेनमेंट वाटर इट कैन कॉज डिसीज। हमें अपने हाइजीन की साफ सफाई के लिए, मतलब हमें अपने बॉडी की साफ़ सफाई के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें सेफ पानी पीना चाहिए। इफ़ वी कंज्यूम कंटेमिनेटेड वाटर इट कैन कॉज डिसीज। अगर हम गंदा पानी यूज़ करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इट कॉजेज डिसीज, वो हमें बीमार करेगा। दैट इज़ वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ द वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। और इसी के वजह से हमें पानी की स्पेशल केयर करनी है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ दिखाया गया है, वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर कवर्ड, जो जिससे हम पानी पीते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर जो है जो हमें कवर करके रखना है। देखो यहाँ कवर किया है ना। प्रिवेंट डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। और कवर करने से क्या होता है, देखो पहले के पेज पे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लीड एंड टैप ऑन द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर लीड या ढक्कन रखने का एडवांटेज क्या है, तो देखो यहाँ इसका आंसर है दिस प्रिवेंट डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये उसका आंसर है कि कंटेनर के ऊपर ढक्कन क्यों चाहिए। दिस प्रिवेंट डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर।
If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. अगर हमने अपने गंदे हाथ पानी में ऐसे ही डाले तो हमारे हाथों पे जितने भी जर्म्स, जितनी भी गंदगी रहेगी, वो डर्ट सब मिट्टी पीने के पानी में एंटर करेगा. So we use a dipper to take the water and we replace the lid at once. इसीलिए हमें डिपर का यूज़ करना चाहिए. डिपर क्या है? ये देखो यहाँ दिख रहा है. यस, देखो डिपर. और पीने के लिए अगर हमने गंदा हाथ पानी में डाला पानी लेने के लिए तो हाथों की सब गंदगी पानी में जाएगी. इसके लिए हमें डिपर यूज़ करना चाहिए. डिपर से हम पानी निकालने के बाद तुरंत निकालते वक्त ढक्कन दूर करना, पानी निकालने के बाद तुरंत ढक्कन से वो पैक करना है. But the best method of taking water is to have a tap on the container. लेकिन इससे बेस्ट वो डिपर लो, डिपर से पानी लो, तो लीड वो ढक्कन दूर करो. इससे बेस्ट मेथड क्या है? हैवी टैप. टैप मीन्स ऐसा नल. पीने के पानी के लिए अगर ऐसा टैप रहेगा, नल रहेगा, तो वो सबसे बेस्ट है. बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज हैव अ टैप ऑन container. This way it becomes easier to take the water and it also prevents contaminations. इससे क्या होगा कि पानी भी this becomes easier to take water. इससे पानी लेना आसान भी होगा और पानी गंदा होने से भी बच जाएगा. पानी गंदा नहीं होगा. But the best method of drinking, okay, ये हमारा हो गया. When the water in the container is finished, we wash the container well before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean. जैसे ही भरा हुआ कंटेनर खाली होता है, उसमें से पानी ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा हमें क्लीन करना चाहिए. और अगर हम ऐसी सावधानी बरतेंगे तो वो पानी हमारे लिए सबसे सेफ पानी. देखो, आप मम्मी को ऑब्ज़र्व करते होंगे, जो पीने का पानी का बर्तन रहता है वो मम्मी डेली आपकी क्लीन करती है. मतलब अगर आज मॉर्निंग में मम्मी ने क्लीन करके भरा तो शाम तक वो ख़त्म हो जाता है, तो शाम को दोबारा फिलअप करती है. लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग में मम्मी दोबारा उसको हल्का सा ब्रश लगाते, हल्का सा साबुन लगाते कि क्लीन करती है. क्यों? क्योंकि पानी के जो डस्ट या कुछ गंदापन रहता है, कुछ चिकनाहट रहती है, वो उस मटके के साइड में या उस बर्तन के साइड में चिपका रहता है. जब मम्मा क्लीन करती है वो तो सब गंदगी निकल जाती है. इसी तरह वो पानी हमारे लिए सेफ रहता है. डू यू नो, क्या आपको पता है? सम पीपल बिलीव दैट द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वाटर स्टोर एवरी डे. डू यू नो, क्या आपको पता है क्या? उसके बाद का लाइन देखो, वाटर डज नॉट बिकम स्लाइट. मतलब पानी सड़ता नहीं है. आपको पता है क्या? पानी सड़ता नहीं है. आप अभी के आप जनरेशन हो तो आपको पता है पानी यूज़फुल है, पानी कोई ख़राब नहीं होता. सम पीपल बिलीव दैट द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वाटर स्टोर्ड एवरी डे बिकॉज द प्रीवियस डे वाटर बिकम स्लिट. कुछ लोगों की, ये स्पेशली पुराने ख्यालों की या पुराने लोगों की, ये एक सोच रहती है कि पानी दिन ब दिन गंदा होता है. मतलब अगर हमने पानी स्टोर किया है तो वो ख़राब होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, पुराना पानी फेंक देते हैं और उसी जगह दूसरा फिलअप करते हैं. बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शंस. बस दिस इज़ अ मिसकंसेप्शंस. थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वॉशिंग गुड water. We should use drinking water for other purpose only if it gets dirtied due to some reason. लेकिन ये उनका क्या है, बस एक गलत फहमी है कि ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, आप जो पीने का पानी आपने स्टोर किया है वो नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद पीने के लिए यूज़ मत करो, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करो, लेकिन उसको फेंको मत. यूज़ योर ब्रेन पावर. आपकी ब्रेन पावर अगेन यूज़ करना है. Why have people begin to use plastic or steel container for storing water? वाटर स्टोर करने के लिए पीपल ऐसे कंटेनर क्यों यूज़ करते हैं? ट्राई दिस. ये आपको ट्राई करना है. डू दिस अंडर आइडल सुपरविजन.
सुपरविजन। आपको ये बड़ों के सुपरविजन में करना है, मतलब बड़ों के देखभाल में करना है। क्या करना है, देखो एक्सपेरिमेंट है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, उसका एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका नैरो जो पोर्शन है वो कट करना है। मेक अ 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस, उसके बेस में ऐसे देखो 4 होल बनाने हैं। कट अ पेन बॉल पेन रिफिल इनटू 4 पीसेस, जो ख़त्म हुई है ऐसी रिफिल कट करनी है। फिक्स 1 पीसेस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली, जो रिफिल हमारी ख़त्म हुई है लिखकर ऐसे ख़त्म हुई रिफिल, उसके 4 पोर्शन 4 पार्ट कट करना है और हर एक होल में वो डालना है। देखो उसके बाद क्या करना है, फिल द बॉटल विद द वाटर, पूरी बॉटल जो पानी से भरनी है। व्हाट डू यू सी, क्या आप देखोगे? वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स, जी जहाँ जहाँ हमने होल किया है वहाँ से पानी बाहर आएगा, बराबर। Why does this tell us, ये हमें क्या बताता है? Using pipe we can distribute water store in one place to several different places at same time. I repeat this line again. What does this tell us? ये हमें क्या बता देता है? Using pipes we can distribute water store in one place to several different places at some time. पाइप के ज़रिए हम एक जगह से पाइप के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पानी आसानी से दे सकते। आप ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी करते हो, आप याद करना। जो आपके पानी की बोतल रहती है, सादी बोतल आप लेकर आते हो, उसको आप आपके कंपास से उसको छेद करते हो, होल करते हो। फिर बाद में घर जाते जाते बचा हुआ पानी सब जगह ऐसे 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 छिड़काते जाते हो। आया याद में? तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है कि सिर्फ खाली एक टंकी भर के रखो, एक जार भर के रखो, उसमें से हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन वो जार को अगर हमने पाइपलाइन किया तो वो पाइपलाइन से एक जार का पानी बहुत सारी जगह हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है देखो, लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर ये लार्ज प्लास्टिक का टैंक्स रहता है। तो हमें पता है सीमेंट का टैंक रहता है, ये तो आपको भी पता है क्योंकि आपके बिल्डिंग पे भी रहेगा। वाटर फ्रॉम दिस टैंक्स कैन बी पाइप टू द किचन, बाथरूम, टॉयलेट्स इन दिस बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग वो टंकी से पाइपलाइन थ्रू हमारे घर में पानी आता है। When taps are fitted on the pipes, water can be taken or shut off according to the needs. जैसे ही ये पाइपलाइन पे टैप लगाने के बाद हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हम पानी यूज़ करते। अगर हमें ज़रूरत नहीं तो हम क्या करते हैं, टैप शट ऑफ मीन्स टैप बंद करके रखते हैं। This is how water from just one tap can be obtained at several places in the building at the same time. और इसके जरिए देखो हमारे बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ एक टंकी रहती है, लेकिन एक टंकी का पानी पूरे बिल्डिंग में आता है। क्यों? पाइपलाइन थ्रू। और पाइपलाइन को जैसे हम टैप लगाते, देखो यहाँ टैप दिख रहा है ना, उसके ज़रिए हमें क्या होता है, जितना पानी चाहिए उतना ही हमें पानी मिलता है। ये देखो यहाँ टंकी दिख रही है ना आपको ऐसी टंकी। तो ये टंकी को पाइपलाइन करने के बाद पूरे बिल्डिंग में पानी आता है। वाटर सप्लाई इन हाउस ऑब्टेन वाटर टैंक्स। कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? इफ़ द रूल इज़ फॉर एवरी वन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्फ, व्हाट वुड बी? देखो कितना फनी क्वेश्चन है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। If the rule is for everyone in the house to cook for themselves, what should be? अगर घर में सबको खाना बनाने की परमिशन मिल गई, क्योंकि अपने अपने हिसाब से करो, तो क्या होगा? द एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या, डिसएडवांटेज, नुकसान क्या? अभी आप मुझे बताओ इसका एडवांटेज क्या है। अगर हर एक को अपने अपने हिसाब से खाना बनाने के लिए बोला तो क्या होगा? लॉट्स ऑफ फूड आर वेस्ट, बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन गैस भी वेस्ट हो जाएगा, बराबर, गैस वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा पानी यूज़ होगा उसमें। और मतलब एक पूरा घर में ऐसे भगदौड़ मच जाएगी कि चलो हर कोई अपने अपने हिसाब से खाना बना रहे। ये क्या हो गया उसका सेकंड डिसएडवांटेज। लेकिन एडवांटेज क्या है?
इसका फ़ायदा क्या है? अगर हर एक को अपने हिसाब से खाना बनाने के लिए बोला तो अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए मिलेगा। अभी आपको कभी कभी ऐसे दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे खाना पसंद नहीं, अगर मम्मी ने बोला जाओ अपने पसंद का बनाओ, तो आप लोग तो जाके मैगी बनाओगे, राइट? तो यह क्या हो गया? एडवांटेज, मीन्स ये फ़ायदा हो गया, आपको अच्छा लगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ़ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर, व्हाट वुड बी? अगर हर एक को जितना पानी चाहिए खुद ही कलेक्ट करने के लिए बोला कि जाओ आपको जितना पानी है आप खुद लेकर आओ, तो इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या रहेगा इसका कि पानी भरने के लिए किसी एक को जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने लिए पानी लेकर आएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हर कोई पानी लेकर आएगा तो पानी कितना वेस्ट होगा, और हर कोई पानी के पीछे बिजी रहेगा, दूसरा वर्क कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो गया? उसका नुकसान हो गया। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप आवर रिमेनिंग पार्ट, वी विल लर्न our next lecture, in our next lecture. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.